Hello students. So today we are going to study the lesson The Treasure Within. It's a very interesting story. Actually, it is an interview between Mr. Hafiz Contractor and the editor. So first we should know the synopsis. In a short, Hafiz Contractor was an unhappy schoolboy. He loved doing things but detested mechanical learning, and mathematics gave him shivers. But then, quite by chance, he found his calling in architecture and has been very successful since then. Okay, so it is all about his school life, his experiences in school life, and how he became successful in his life. This has been discussed in this chapter. So I hope you will enjoy the chapter. In the very first picture, you can see that this is Hafiz Contractor. He is sleeping, and while sleeping also he is having terrible nightmares. What do you mean by nightmare? डरावने सपने. Yes. Only now, over the last 4 to 5 years, it seems to have disappeared. Just 4 5 years before only he has stopped seeing these nightmares. Otherwise, what he used to see in his nightmares, in his dreams, that the maths result has come and he has scored only 10 marks out of 100. So this was. I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. So he used to see nightmares, dreams where he is appearing for the exam and doesn't know anything. Now the psych must have gotten over it. I don't have to think about education, and there is absolutely no time to get nightmares. Now he is very busy and he doesn't have time to get the nightmares. ये ज्यादातर बच्चों के संग होता है कि डरावने सपने आते हैं. Okay, now the chapter begins that how he was afraid of mathematics and he was successful in this field only now. So this is an interview, and the full chapter is a conversation between Ms. Bela Raja, editor of Sparsh, a newsletter from the Resource Center, the Valley, Bengaluru, and Mr. Hafiz Contractor, one of the India's leading architects. इन दोनों के बीच में एक इंटरव्यू है. ये पूरा चैप्टर अगर आप देखें तो डायलॉग्स हैं बेला राजा और हफीज कॉन्ट्रैक्टर के बीच में. This chapter is very important for all the students because it tells us that every child is a potential achiever. हर बच्चे में एक क्षमता है अचीव करने की, and he is different from other children in his or her style of learning and area of interest. और हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है लर्निंग में और उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी अलग हो सकता है. So we should not force children for one thing only. In the first and second year, I was a good student and I reached the third standard. I simply lost interest and never studied. तो फर्स्ट और सेकंड जब ईयर था तब तो वो अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन जब वो थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचा तो उसका पढ़ाई से बिल्कुल इंटरेस्ट हट गया और वो कभी नहीं पढ़ता था. तो क्या करता था वो फिर? He used to be interested in games, running around, playing jokes and pranks on others. उसको दूसरों के संग गेम्स खेलने में, प्रैंक्स करने में, प्रैंक्स माने दूसरों का मजाक बनाना, है ना, इन सब चीजों में उसको बहुत ज्यादा मजा आता था. और जब वो पढ़ता नहीं था तो पास पास कैसे हो जाता था, ये क्वेश्चन है. I would copy during exam times. I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in class. तो क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेके उसको पहले ही उसको तैयार कर लेता था, क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं रहता था कि एग्जाम में क्या होने वाला है. However, when I approached my 11th standard, जब वो अपनी 11th standard में पहुंचे, 11वीं कक्षा में पहुंचे, one sentence spoken to me by my principal changed my life. तो what happened कि उसको कुछ भी याद नहीं रहता था, इसलिए वो एग्जाम्स में पूरी नकल करके ही पास होता था. लेकिन उसके एक बार प्रिंसिपल ने उसको बुलाया, जब वो when I approached my 11th standard, जब वो 11th में आए तो उनके प्रिंसिपल ने एक दिन बुलाया. And one sentence spoken to me by my principal changed my life. और एक सेंटेंस जो प्रिंसिपल ने बोला उसने मेरी लाइफ को बदल दिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्या प्रिंसिपल ने उसको बोला जिसने उसकी लाइफ को चेंज किया. तो इसको ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए. Look here, son, I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never study.
तुमको मैं डे 1 से देख रहा हूँ, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो पर तुम पढ़ते नहीं हो. आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे. नाउ आई कैन नो longer take care of you, so you do it yourself. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years. But you have only played games. Now you should rise to the occasion and study. उसने कहा तुम्हारी फादर नहीं है और तुम्हारी मदर ने इतनी मेहनत करके तुमको यहाँ तक लाई है, इतनी फीस जमा की है तुम्हारी, तुम हमेशा गेम्स ही खेलते रहते हो, तो कम से कम अब तुम सीरियस हो जाओ क्योंकि 12th क्लास है तुम्हारा, अब तुम पढ़ाई करो. ये बात हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को बहुत वो लगी और उनके दिमाग में बैठ गई. और उस साल वो एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर थे, चैंपियन थे और रोज खेलते थे क्रिकेट, लेकिन उस साल उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, है ना. उसने बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं खेला ना, केवल प्रेयर करते थे, वो खाना खाते थे और पढ़ाई करते थे. तो एक साल वो बिल्कुल सीरियस हो गए अपनी लाइफ में. और नॉर्मली वो एग्जाम में कॉपी करके पास होते थे, लेकिन जब वो एक एसएससी में आए यानी 12th में आए तो उन्होंने देखा कि वो ऐसा नहीं कर सकते. और जब उनका रिजल्ट आया तो सेकंड क्लास में 50% लेके वो पास हुए. तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि सन कंसीडर योरसेल्फ एज हैविंग गॉट डिस्टिंक्शन. तुम ये मान के चलो कि तुम्हारी डिस्टिंक्शन आई है, यानी कि 75% के ऊपर है, क्योंकि तुम्हारे लिए 50% लाना अपने दम पर बहुत बड़ी बात है. दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डे. ये उसको याद है. आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड. दिस इज हाउ इट वर्क्स विद मी. तो इनके लर्निंग का तरीका अलग है. इनको जो भी ये पढ़ते मैटर होता है बुक में पढ़ते हैं, तो उसको एक फोटोग्राफ की तरह याद कर सकते हैं, है ना. उनके वो दिमाग में नहीं बैठता, एक फोटोग्राफ जैसा उनकी छवि दिमाग में बैठ जाती है और उसको याद कर लेते हैं. आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप. I used to be so interested in playing. I just receive a caning every week. Just lift up the hand and they would cane you. तो कोई भी चीज महसूस नहीं होती थी. और खेलने में इंटरेस्टेड रहते थे वो कि हर हफ्ते उनको मार पड़ती थी और वो आराम से हाथ उठा के मार खा लेते थे. इट वुड हर्ट बैडली. वो उनको चोट भी लगती थी, ऐसा नहीं है कि चोट नहीं लगती थी, लेकिन वो भूल जाते थे क्योंकि वो खेलना ही चाहते थे. उनका इंटरेस्ट किस चीज में था? इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स. आई वाज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स. उनको सबसे ज्यादा मजा फनी प्रैंक्स करने में आता था, यानी कि दूसरों को बेवकूफ बनाने में, दूसरों पे मजाक करने में. और वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी. एक दिन उनका बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं था. सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन. तो उन्होंने क्लास में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया. फॉर 1 whole year वी प्लेड चोर पुलिस. पूरा आवर फॉर 1 घंटे तक वो चोर पुलिस खेलते रहे. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या डिस्ट्रैक्शन उन्होंने किया. चोर पुलिस. आई यूज्ड टू बी लीडर ऑफ अ गैंग. We would have gang fights and plan strategies. These things used to interest me more than in academics. तो वो लीडर बन जाते थे, गैंग बना लेते थे और गैंग के लीडर बन के फिर फाइट करते थे, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाते थे और फाइट्स करते थे. तो इन सब चीजों में उनको बहुत मजा आता था. तो ये उनकी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ के बारे में सब कुछ था. अब वो फिर वो बेला राजा उनसे पूछती है कि हाउ डू यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर तो एक बहुत कठिन लाइन है, आप उसमें कैसे आ गए? तो वो कहते हैं द कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड 80 बिलो who had got below 80-85% was allowed to enter. I had only 50%. उन्होंने कहा आर्किटेक्चर के कॉलेज में किसी भी 80-85% से कम वाले को तो वो एंटर ही नहीं करने देते. मेरा तो केवल 50% था, तो मेरा तो सवाल ही नहीं उठता कि मुझे आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन मिल जाए. तो वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उनका एडमिशन लेटर भी आ गया था, लेकिन उनकी आंट ने उसको फाड़ के फेंक दिया क्योंकि उसकी आंट नहीं चाहती थी कि वो आर्मी में जाए. तो फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया दैट आई वांट टू जॉइन द पुलिस फोर्स, लेकिन उनकी उसके लिए मदर ने मना कर दिया. उनकी मदर ने कहा कि नहीं, आप पुलिस फोर्स मत ज्वाइन करो, पहले आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करो. ग्रेजुएशन इज द बैचलर डिग्री. एजुकेशन की एक बैचलर डिग्री आप लो, उसके बाद आप कोई जॉब करना. तो बैचलर डिग्री लेने के लिए उनको जय हिंद कॉलेज ऑफ बॉम्बे में एडमिशन मिल गया और वहां पे वो जाने लगे. यहाँ पर भी उनको कॉलेज में एडमिशन सिफारिश से मिला था, अपनी काबिलियत से नहीं मिला था. काबिलियत तो उनकी 50% थी. तो अब जब वो वहां गए, आई वॉज टू टेक इधर फ्रेंच और जर्मन. मुझे या तो फ्रेंच या जर्मन लैंग्वेज लेनी थी. दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, सो आई टुक जर्मन. वैसे उन्होंने अपने 7 साल जीवन में फ्रेंच पढ़ी, लेकिन उनको 7 वर्ड नहीं आते थे फ्रेंच, क्योंकि उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था. इसलिए उन्होंने सोचा चलो यहाँ जर्मन ले लेता हूँ. लेकिन क्या हुआ? Unluckily, your German teacher had died. You can change your college or take French. तो वो प्रिंसिपल ने वहाँ के बोला जैन कॉलेज के, वही जर्मन टीचर की डेथ हो गई है तो इसलिए अब वहाँ पे जर्मन नहीं पढ़ाई जाएगी,
तो या तो आप कॉलेज चेंज कर लो, अगर आपको जर्मन ही पढ़नी थी तो कॉलेज चेंज कर लो, या फिर फ्रेंच ले लो, चॉइस है आपके पास। अब वो जानते थे कि वो बड़ी मुश्किल से बारिश से तो यहीं एडमिशन मिला है, तो अब दूसरा कॉलेज उनको तो मिलने से रहा, तो उन्होंने कहा ओके आई विल टेक फ्रेंच। अब उन्हें फ्रेंच ले तो ली, लेकिन फ्रेंच आती नहीं थी, तो इसलिए उनकी एक कजन थे, है ना, शी वॉज एन आर्किटेक्ट वाइफ, उसके हस्बैंड आर्किटेक्ट थे, तो वो कजिन के घर फ्रेंच पढ़ने के लिए जाती थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। वो आर्किटेक्ट के ऑफिस में ही जाते थे, आप देख रहे हैं ये उनकी कजन है, इसके हस्बैंड आर्किटेक्ट हैं, और ये उससे पढ़ने के लिए आर्किटेक्ट ऑफिस में फ्रेंच सीखने जाती थी। अब एक दिन क्या हुआ वहां पर, इन द आर्किटेक्ट ऑफिस, जो आर्किटेक्ट का ऑफिस था वहां पर, आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल, अ वेरी एडवांस ड्राइंग, एक बहुत एडवांस ड्राइंग थी, विंडो खिड़की बनाना। तो वो बना रहा था आर्किटेक्ट, तो ये खड़े थे पास में ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर, इन्होंने जब वो ड्राइंग को देखा तो उसने बोला योर ड्राइंग इज रॉन्ग, द विंडो वुड नॉट ओपन। देखा, आप जो ड्राइंग कर रहे हो विंडो की वो गलत है, वैसे खिड़की खुलेगी नहीं इस ड्राइंग से। तो वो जो व्यक्ति था वहां पर दूसरा, उसने बेट लगाई, उसने शर्त लगा ली कि नहीं तुम गलत हो, मैं आर्किटेक्ट हूँ, तुमको क्या पता। लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप शर्त लगा लीजिए, ये आपकी खिड़की खुलेगी नहीं। और बाद में पता लगा कि ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर सही थे, वो ड्राइंग वाकई में गलत थी। अब जो उसके कजन के हस्बैंड थे वो बहुत सरप्राइज हो गए। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, उन्होंने कहा अच्छा तुम कुछ चीजें ड्रॉ करके मुझे बताओ, और हफीज ने इमीडिएटली वो चीजों को ड्रॉ कर दिया। फिर क्या हुआ, ही आस्क्ड मी टू डिजाइन अ हाउस, फिर उन्होंने उससे कहा अच्छा घर बना के दिखाओ, एंड आई डिजाइन द हाउस, उन्होंने घर भी बना दिया। तब वो जो थे आर्किटेक्ट, उन्होंने कहा कि यू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, उन्होंने सब कुछ छोड़ो और आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो। वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, अब वो उसको लेके कॉलेज के प्रिंसिपल, जो आर्किटेक्चर कॉलेज था वहाँ के प्रिंसिपल के पास गए। तो उन्होंने बोला ओके अगर तुम्हारी इतनी अच्छी, तुमको लगता है कि तुम कर सकते हो, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम, बट इफ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। उसने कहा ठीक है तुम एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर लो, भले ही तुम्हारा परसेंटेज कम है, लेकिन अगर तुम अच्छा नहीं करोगे तो तुमको मैं लूंगा नहीं। लेकिन क्योंकि वो तो अच्छे आर्किटेक्ट थे, उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, आई गॉट एन ए प्लस, उनको ए प्लस मिला एंट्रेंस एग्जाम में, और वहां से उनके लिए वो केक वर्क हो गया, यानी वेरी इजी। केक वर्क मीन्स इजी। आई हैड नेवर known what a section was, उन्हें पता नहीं था कि सेक्शन क्या होता है, but I knew if you cut a plan what it would like that, तो I stood first class throughout after that, और उनको ये पता था कि कैसे सेक्शन बनाना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीजें उनको इतना टेक्निकल नहीं पता था, लेकिन ड्राइंग उनकी बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद से उनको जब वहां सीखने को मिला और उनका इंटरेस्ट भी था उसमें, तो वो फर्स्ट क्लास थ्रू आउट आते हैं। I believe that all this understanding came from what I used to play and do during school, जो स्कूल में खेला करते थे वहीं से उनको ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी, ये एक डेवलप हुई थी, है ना। तो उनका एक फ्रेंड था बहराम देवाचे, बहराम देवाचे जो उनका फ्रेंड था वो भी बहुत अच्छा आर्किटेक्ट था। इन दोनों के बीच में बहुत कॉम्पिटिशन होते थे, डिजाइनिंग फोर्ट गन्स एंड एम्यूनिशन, तो किले बनाओ, गन्स बनाओ, एम्यूनिशन हथियार बनाओ, ये सब चीजों को वो डिजाइन करते थे, और दोनों की वो एफर्ट्स रहते थे कि उनका डिजाइन उससे डिफरेंट रहे। ठीक है, तो ये हो गया कि कैसे वो एक आर्किटेक्ट की लाइन में आए। अब दिस कॉन्ट्रैक्टर जो कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड, अब वो पूछती हैं उससे कि आज आप प्रेजेंट में कैसे डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का स्ट्रक्चर आपके क्लाइंट को चाहिए, यानी आपके ग्राहक को किस प्रकार का घर चाहिए, किस प्रकार की बिल्डिंग चाहिए, ये आप कैसे डिसाइड करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन उसने पूछा बेला राजा ने। तो उन्होंने देखो कितना अच्छा जवाब दिया कि आई लुक एट द क्लाइंट फेस, मैं क्लाइंट के फेस, उसके क्लोथ्स, वो कैसे टॉक करता है, कैसे प्रोनाउंस करता है, कैसे खाता है, ये सब चीजों को देखता हूँ, है ना। एंड आई नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और मुझे उनके टेस्ट का अंदाजा हो जाता है कि उनको अच्छा है ये चीज ऐसा इनको पसंद है। जैसे किसी लोगों को डार्क कलर पसंद है, किसी को लाइट पसंद है, किसी को बड़ा घर पसंद है, किसी को छोटा पसंद है, किसी को डबल स्टोरी चाहिए, किसी को सिंगल स्टोरी चाहिए, किसी को गार्डन चाहिए। तो ये उनके टेस्ट को पकड़ लेते थे कि टेस्ट क्या है, और जब एक बार आप टेस्ट को पकड़ लेते हैं किसी के, तो इट बिकम्स वेरी कंफर्टेबल। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर, और मैं उसके घर के स्केच को स्पॉन्टेनियसली, मैंने विदाउट एनी प्रॉब्लम एक बार में ऑन द स्पॉट बना के दे देता हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा, तो वो कहते हैं आपके लिए अर्थमेटिक जिसको लोग बोलते हैं, इट कम्स टू मी लाइक, उसने कहा जो अर्थमेटिक की बात होती है वो मेरे लिए मैथमेटिक्स का टर्म क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है कि व्हाट वाज मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू हफीज कॉन्ट्रैक्टर। तो इसमें वो कहते हैं मैथमेटिक्स का मतलब पुटिंग डिजाइन कंस्ट्रक्शन,
यानी डिजाइन को डालना, कंस्ट्रक्शन को डालना। यानी सपोज लो आप एक खिचड़ी बना रहे हैं, उसमें आप डिजाइन डालिए, कंस्ट्रक्शन डालिए, साइकोलॉजी डालिए, साइकोलॉजी ऑफ द क्लाइंट कि कैसा उसको चाहिए, एंड सोशियोलॉजी टुगेदर, और सोशियोलॉजी भी डालिए, एंड मेकिंग अ स्केच, और इन सब को मिलाकर आप एक स्केच बनाइए फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स। तो यही मैथमेटिक्स है। यानी मैथमेटिक्स में उनके लिए डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर, all together are when put together it becomes mathematics। तो आप देख रहे हैं कि कितने फेमस वो आज आर्किटेक्ट हैं because of his this thinking, है ना। however we almost come to all to a full circle। अब आप देखें कितनी अच्छी अच्छी उन्होंने बिल्डिंग बनाई है। where Mr. Contractor had derived his own interpretation of mathematics, taking it from subject he hated to a subject he knew needs dealing with। okay, अब ही अब आप वो देख रहे हैं कि कहाँ उनको मैथमेटिक्स इतनी चिढ़ती है और कहाँ वो अब लेवल्स पे ले गए उसको, नए मैथमेटिक्स को। तो ये हफीज कॉन्ट्रैक्टर का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चों को सिखाता है कि आपके अंदर टैलेंट हिडन है। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी है द हिडन ट्रेजर, यानी कि आपके अंदर ट्रेजर छिपा हुआ है, आपको उसको सर्च करना है। क्रिएटिविटी आपके अंदर है, उस क्रिएटिविटी को आप कैसे अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, कैसे उसको आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। And now students you please solve the question answers। सारे क्वेश्चन आंसर हैं इसमें। इसमें चार में से एक ऑप्शन सही है। जैसे व्हाट डिड हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर अबाउट, तो हम ये पढ़ चुके हैं, है ना। ये हम लोग पूरा मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन करा है, आप इसको सॉल्व करिए, पूरे को आप पॉज कर करके इसको सॉल्व करिए। और नेक्स्ट वीडियो में जो इस लेसन की नेक्स्ट सप्लीमेंट्री का लेसन हम जब लेंगे, तो उसमें मैं आपको ये सारे आंसर्स बताऊंगी इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है। आइडियाज फॉर एक्शन, इसमें आप अपना ऑटोग्राफी पढ़ सकते हैं फेमस लोगों की जिन्होंने स्कूल में बहुत अच्छा नहीं किया। एक विंडो ड्रॉ करिए दैट ओपन बोथ वेज, है ना। आप अपने ईमेल टीचर को ईमेल करिए कि हाउ कैन यू, व्हाट कैन यू डू टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अनयूजुअल लर्नर्स। तो इसमें आइडियाज फॉर एक्शन है, कोई भी आप एक्शन अगर इसमें से लेना चाहें। फूड फॉर थॉट मीन्स आप इसमें सोचिए, विचार करिए कि व्हेन आई ग्रो अप आई वुड लाइक टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं। when we are punished, जब हमको पनिशमेंट मिलती है, we feel dot 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 means आप अपना सोचिए। I think create activity and creativity are interlinked, एक्टिविटी और क्रिएटिविटी आपस में जुड़ी हुई हैं। because besides study other things that are important at school are, स्कूल में बिना स्टडीज के अलावा और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। इन द एंड हफीज बिकेम वेरी सक्सेसफुल बिकॉज, आपको क्यों लगता है कि हफीज क्यों सक्सेसफुल हो गए? बिकॉज हफीज कॉन्ट्रैक्टर कुड बी कंसिडर्ड एन अनयूजुअल लर्नर, बिकॉज वो अनयूजुअल लर्नर थे। क्यों? हफीज कॉन्ट्रैक्टर डिडंट डू वेरी वेल एट स्कूल बिकॉज, और वो स्कूल में बहुत अच्छा नहीं कर रही थी। क्यों? ये सब क्वेश्चंस आप सोच सकते हैं, इनको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए एंड सब्सक्राइब फॉर द चैनल सो दैट यू कैन फॉलो अप ऑल द वीडियोस वन बाय वन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।